the moment, Omicron remains a big issue across the country, and it is particularly troubling in the big cities of Mumbai and Delhi. With an increase in the COVID cases in the capital, hospital beds are slowly getting occupied. While the percentage of hospitalization is still low compared to the second wave, as the caseload rises, Delhi too is facing a difficult situation. Milan Sharma has today's Omicron report. तो संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है. Delhi Health Minister this week predicted 14,000 daily COVID cases, but assured the capital is in a comfortable position in terms of hospital bed availability. 3 days later, the national capital has breached the 15,000 mark and the caseload is likely to increase exponentially. Delhi's Corona app is already showing an increase in bed occupancy. When there's a steep rise and once the disease spreads into the immunocompromised people as well, like those who are elders, those who have underlying diabetes, hypertension, cardiac ailments. So once it starts to spread in them, then of course the hospitalization rates will also go up. Doctors now say patients who were admitted for planned surgeries or treatment are testing positive. Incidental positive itself explains the community spread now. So people who are coming here, they are asymptomatic or they are, coming for some planned surgeries, and if they're getting it tested, they have no symptoms at all. And when they get the RT-PCR, then it is positive. Will the hospitals be overwhelmed by the third wave? Data accessed by India Today from sources in the Delhi government can give some perspective. The active caseload on April 2nd was 11,994, while on January 3rd, it was 10,986. The caseload at this stage is roughly the same. Now look at the hospitalizations. On April 2nd, 1,956 or 16% of active cases needed oxygen, while on January 3rd, this number was 398 or 3.6%. The number of patients in ICU on April 2nd were 808, roughly 6.7% of active cases, and on January 3rd, it was 113 or 1%. On April 2nd, 249 patients or 2.1% of active cases were on ventilator, while on January 3rd, 48 or 0.4% were on life support. Medical experts say that incidental positives are a bigger concern at the moment, and those who are coming in for other illnesses are turning out to be positive. That could also lead to a surge in hospitalizations. As slow rates of hospitalizations continue to increase, the full impact of Omicron will be known in a few days from now. With Ajay Thakur in New Delhi, this is Milan Sharma for India Today. Let me now go straight across to Delhi's Health Minister, Dr. Satyendra Jain, joins us. Appreciate your joining us, Dr. Jain. Satyendra Jain, I want to ask you this, that when I look at these numbers in terms of ICU beds and in terms of oxygen beds, you seem to be in a relatively comfortable position compared to the second wave. About only 1% of active cases required ICU beds, 3.6% of active cases required oxygen. Are you confident that this time there will be no crisis like there was in April में? कोई crisis नहीं होगी इस बार? तो राजीव जी, मैं पहले आज का डेटा बता देता हूं आपको. आज जो एक्टिव केस हैं 17,335 केसेस एक्टिव केस पॉजिटिव केसेस आए हैं. पॉजिटिविटी रेट इज 17.73% एंड जो डेथ है वो 9 है, और जो वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट है वो 31 है. एक्चुअली में एक तो डेटा में थोड़ा फर्क ये होता है कि वेंटिलेटर बेड है और वेंटिलेटर पे पेशेंट है, दोनों में फर्क है. कई बार क्या होता है, पेशेंट इज ऑन द वेंटिलेटेड बेड बट वो पेशेंट वेंटिलेटर पर नहीं होता है. तो एक्चुअल में 31 पेशेंट ही वेंटिलेटर पर है, जो कि पहले के मुकाबले में बहुत कम है. अगर इतने अभी आज की डेट में देखो 39,873 पेशेंट एक्टिव पेशेंट, 40,000 पेशेंट एक्टिव है. जब पहली बार हमारे पास 40,000 एक्टिव पेशेंट थे तो वेंटिलेटर के ऊपर 500-600 पेशेंट थे. इस बार 31 है. तो काफी पिछली बारी के मुकाबले में जो सीवियरिटी है काफी फर्क है. और जो अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेशेंट एडमिट भी हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं वो दूसरी बीमारियों का इलाज करा रहे थे, और जब उनको टेस्ट किया गया तो ऑलरेडी एडमिटेड है, वो पता लगा कोविड है उनको.
जैसे एग्जांपल के लिए बताऊंगा, एलएनजेपी हॉस्पिटल 30 जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव निकली, उनको कोई और बीमारी नहीं, कोई लक्षण नहीं था, कुछ भी था, बट वो दे आर इन काउंटिंग में वो भी है। बीमार होकर हॉस्पिटल में बहुत कम लोग आ रहे हैं कि घर से बीमार के आ रहे हैं, बट भी नंबर इज वेरी लो। But Satyendra Jain ji, the positivity rate is rising. यानी केस लोड तो बढ़ती जाएगी. You have put in now weekend curfew. Do you really think कि weekend curfew से ये केस लोड कम होगी? क्या असली प्रॉब्लम ये हो सकता है कि केस लोड इतनी बढ़ती है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट इतनी बढ़ जाएगी कि इवन 1% या फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर आपको परेशानी होगी ही होगी? देखो राजीव जी, हमने सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया। दिल्ली ने सबसे पहले देश के अंदर सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, सारे जिम बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, रेस्टोरेंट्स, दुकानें, मॉल्स, उसमें इवन ऑड कर दिया, मतलब काफी कम कर दिया, उसका आधा कर दिया, ऑक्यूपेंसी कर दी। तो हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं लगे थे, हमने लगाए। तो उसका रीजन ये था कि एक्टिविटी को कम किया जाए, और अभी हम इसमें पूरी वॉच रखे हुए हैं, पूरा ध्यान रखे हुए हैं कि अगर केसेस एक लिमिट से आगे बढ़ेंगे, देखो नंबर ऑफ केसेस तो जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे तो पता लग सकते हैं। अगर टेस्ट करना, कई स्टेट टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, कहते हमारे यहाँ है ही नहीं, तो उसमें दिल्ली ने कभी नहीं इस बात को माना। हम लोग 50,000 टेस्ट कर रहे थे, अब 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट हमने बढ़ा दिए हैं, तो नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नंबर की चिंता नहीं, चिंता इस बात की कितने लोग एक्चुअल में बीमार हो रहे हैं। और उस पर हमारा पूरा टैब रखा हुआ है, एक एक हॉस्पिटल डाटा है। जैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल में 750 बेड हमने अभी एलोकेट किए हैं, पिछली बार हमने 2000 किए थे, 2000 हम कल भी कर सकते हैं, चाहे तो कल ही 2000 कर देंगे, बट क्योंकि 750 में से भी ऑक्यूपाइड जो है 50 है, तो अभी भी 50 ऑक्यूपाइड है, उसको मैं 2000 करके अभी जरूरत नहीं है, जैसे जरूरत पड़ेगी मैं उसको इमीडिएटली बढ़ा दूंगा। तो हमारे पास अभी बफर काफी ज्यादा है। आज अभी क्या मैं डाटा बताता हूँ, 14,000 हमारे पास बेड है कोरोना के लिए, जिसमें से 1400 बेड ऑक्यूपाइड है। 10% इज ऑक्यूपेंसी, 10% से ऊपर नहीं जा पा रही है, अगर ज्यादा जाएगी तो हम और बेड बढ़ा देंगे। So you are giving me very hopeful signals, but I want to ask you, is there any possibility of a lockdown? क्या आप सोचेंगे वाकई कि पूरा लॉकडाउन करना पड़ेगा अगर केस लोड बढ़ती जाए, या यू आर लुकिंग दिस टाइम एट हॉस्पिटलाइजेशन रेट? इफ हॉस्पिटलाइजेशन रेट रिमेन्स लो, देयर विल बी नो लॉकडाउन। मैं तो एक चीज कहूंगा कि लॉकडाउन जो है ना, 2 तरह का हो सकता है। पहले हमने लॉकडाउन देखे हैं, वो लॉकडाउन है। दूसरा लॉकडाउन एक और भी जो 2 साल के एक्सपीरियंस हमने सीखा है, ये जो मास्क है ना, अगर सभी लोग 100% लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा लें जब भी घर से बाहर निकले, उसका जो इफेक्ट है वो लॉकडाउन से भी ज्यादा है। मैं बार कई दिनों से लगातार कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर कंप्लायंस पिछले 3 दिन से लगभग 100% हो गई है, और मुझे लगता है इसका असर देखने को आपको 1-2 दिन में मिलेगा। लॉकडाउन का जो भी बेनिफिट मिलने वाला है, आप पूरे वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, पूरा लॉकडाउन लगा उससे इतना फायदा नहीं मिला जितना कि अगर 100% लोग मास्क लगा लें। तो मैं तो कहूंगा कि आप मास्क वाला लॉकडाउन कर लीजिएगा, सभी जनता कर ले, तो इसके बाद इसका रिजल्ट 5 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। One final question, Satyendra Jain ji, when will Delhi reach almost 100% double vaccinated adult population? ये अभी दिल्ली 100% फर्स्ट डोज कर चुकी है, सेकेंड डोज को भी 77% पहुंच चुका है। ओनली थिंग इज कि लोगों का 1 महीना पूरा नहीं हुआ, कुछ लोगों का 3 महीने पूरे नहीं हुए, जैसे पूरा हो रहा है सब लगवा रहे हैं, क्योंकि सेकेंड वैक्सीन लगवाने के लिए गैप है, उस गैप के लिए वेट करना पड़ता है। अनदर 2 months, so within the next 2 months, okay, within 2 months, that's good news again, that Delhi could be fully vaccinated within 2 months, because vaccinations in a way is a key. 31 मार्च तक मुझे लगता है दिल्ली पूरा हो जाएगा। 31st? Okay, I will hold you to that. मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, 31 मार्च तक दिल्ली पूरा वैक्सीनेट हो जाएगा। सत्येंद्र जैन, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, thank you very much for joining me here on the news today. Now